So now we have to start atoms, elements, and compounds. First of all, the types of substances. There are two types of substances. They may be pure substances or they may be mixtures. Depending on the type of particles of which they are made up of, the substances are divided into two um, types like pure substances and mixtures. मीन्स के अगर सारे के सारे पार्टिकल्स सेम हैं तो वो एक प्योर सब्सटेंस है. अगर पार्टिकल्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो हैं दे आर मिक्स टुगेदर, सो वो फिर बनाएंगे मिक्सचर्स. ऑलराइट, प्योर प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू क्लासेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स में मोस्टली वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स which you already know that they are arranged in the form of a periodic table. Now, if I show you the periodic table, you can see that on your left hand side, the elements which are placed in pink boxes, they are all metals. Whereas the elements which are placed in blue boxes, they on the right side of the periodic table, they are all non-metals. In between metals and non-metals, you can see that there is a staircase. ये जो स्टेयर केस है इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं दे आर केप्ट इन ग्रीन बॉक्सेस एंड दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स. Why are they called metalloids? Because that they are placed between metals and non-metals. So इनकी जो properties हैं वो क्या हैं? They are intermediate of the properties of metals and non-metals. Alright. Further, we can classify elements into atomic elements and molecular elements. Atomic elements means that they are made up of atoms. अब atoms metals के भी हो सकते हैं और non metals के भी हो सकते हैं. Non metals में like we have noble gases, helium, neon, and you already know कि ये जो है कैसे exist करते हैं isolated atoms. Or you can also give the example of metals like sodium, potassium, or any other metal like iron, copper. They are all atomic elements. Molecular elements means that they are made up of molecules. और जो molecule के अंदर दोनों element molecule के अंदर जो atoms हैं they will be similar, they will be same. Like for example H2. अब hydrogen में both the atoms are of hydrogen. O2, Cl2, P4, S8. So these are all molecular elements. Next we have compounds. Compounds क्या होते हैं, कैसे बनते हैं compounds? Compounds are formed when same or two, maybe two or more than two same or when two or more different elements combine together, they form compounds. For example, water. इसमें कौन से दो elements हैं? Hydrogen and oxygen. These are two different elements which have chemically combined together. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और भी कोई सा भी दूसरा, you can give example NaCl. So these are all the compounds that are formed, which are when the elements, two or more than two different elements combine together chemically, then compounds are formed. Now we come to mixtures. अब mixtures क्या होते हैं? जैसे pure substances का हमने कहा कि pure substances वो होते हैं which are formed of same type of particles or atoms. जबकि mixtures क्या होते हैं कि that they are made up of different types of particles. Like you air की example है. Air is a mixture of different gases. Air के अंदर different gases present हैं. Mixtures को हम divide कर सकते हैं into two categories, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Like what are homogeneous mixtures? Homogeneous mixtures are those mixtures which have same composition throughout. They have same composition throughout. That means like for example अगर आप शुगर को या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर
इट्स अ मिक्स, एक मिक्सचर बनता है जिसमें कि सॉल्ट थरली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, एंड इट विल हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं विच डू नॉट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जैसे आप वाटर में ऑयल डाल दें या वाटर के अंदर सैंड, तो दे विल नॉट मिक्स टुगेदर, लेयर्स विल बी फॉर्म्ड और थॉरली मिक्सिंग नहीं होगी दोनों की। Now next is the differences between compounds and mixtures. Like we said before कि compounds क्या होते हैं? Compounds are formed when two or more substances are chemically combined together. When two or more different elements combine together, then compounds are formed, and they are formed as a result of chemical combination. Whereas mixtures are formed when two or more substances are just physically combined together. There is no chemical reaction, it's just a physical mixing. फिर कंपाउंड्स में क्या होता है, इनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है। Why is their composition fixed? Because the components combine together in fixed proportion by mass. For example, the simplest example is of water. Water is formed when two atoms of hydrogen they combine with one atom of oxygen. Now this is the ratio in which both of these elements will combine together to form water. And if this proportion changes, like water H2O की बजाय H2O2 बन जाता है, now this is no more water, क्योंकि अब इनकी प्रोपोर्शन जो है, रेशियो दोनों एलिमेंट्स का चेंज हो गया है, उस चेंज की वजह से केमिकल कंपाउंड भी चेंज हो जाता है। जबकि मिक्सचर्स में ऐसा कोई नहीं है, द कंपोनेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनी फिक्स प्रोपोर्शन। अब क्योंकि कंपाउंड्स को हमने कहा कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शंस बाय देयर masses, तो इस वजह से फिर उनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे H2O इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, H2O2 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मिक्सचर्स में दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी केमिकल फॉर्मूला। अब जब हमारे पास कंपाउंड बनता है तो वो कंपाउंड बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें के जो कंपोनेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, iron when reacts with sulfur, chemical reaction takes place when it is heated. अब जब आप इनको हीट करते हैं तो इनमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। नाउ आयरन सल्फाइड इज अ न्यू प्रोडक्ट, इट्स अ न्यू कंपाउंड। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड सल्फर बोथ। That means that iron and sulfur both have lost their properties as a result of formation of iron sulfide. जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में क्या होता है कि that the components of a mixture maintain their individual properties. अब for example, if you take a container, उसके अंदर आप आयरन पीसेस भी डाल दें और उसके अंदर आप सल्फर डालकर, if you make the mixture of this, अब इसमें नथिंग न्यू, कोई नई चीज, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना। यू कैन ब्रिंग अ मैग्नेट नियर इट, और मैग्नेट से क्या होगा कि मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल दीज आयरन पीसेस, एंड दिस इज हाउ यू कैन इजीली सेपरेट आयरन फ्रॉम सल्फर। वेयर एज इफ यू ब्रिंग magnet near this iron sulfide, nothing will happen because now iron has lost its properties. फिर लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि the components of a compound cannot be separated by physical methods, because compound तो बना है by chemical method, तो हम by simple physical methods इनको, इनके components को separate नहीं कर सकते। जबकि
और या अगर सेपरेट करना भी पड़ा तो उसके लिए फिर कोई केमिकल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन. On the other hand, the components of a mixture can be separated by physical methods. जैसे ये आयरन बार लेके आए और हमने दोनों आयरन और सल्फर दोनों की सेपरेशन कर ली, या इसके अलावा filtration, simple filtration, distillation, these are all simple physical methods by which we can separate the components of a mixture. Now we come to the atomic structure. You already know what is an atom. An atom is the fundamental building block of matter. It is the smallest unit of an element. Atoms are composed of three main subatomic particles, और वो क्या हैं? Proton, neutron and electron. These are the three subatomic particles. Proton and neutron, these are present in the nucleus. This is the nucleus in the center. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, and the electrons are revolving around it in their fixed pathways, which are called orbits, or you can also call them shells or energy levels. In fixed pathways में the electrons keep on revolving around the nucleus. And next is, if we see what are the charges and the relative masses of these subatomic particles, like first one is proton. प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव 1. प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. उसके बाद न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट मींस दैट they have zero charge or they are neutral. These are neutral particles. Then electron. An electron has a negative charge. And their relative masses. The relative mass of proton is 1, neutron is also 1. But the relative mass of electron is negligible. It is very small in size, or you can say it is 1 by 18/40th of the mass of proton or neutron. Or you can also write 0.00055. Next, we also know that an atom is electrically neutral. और atom क्यों neutral होता है, electrically neutral क्यों होता है? It is due to the presence of equal number of protons and electrons, equal number of positive and negative charges. हाँ, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, और न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, बट द एटम ओवरऑल इज न्यूट्रल बिकॉज जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे. Like one proton has a charge of positive 1, one electron has a charge of negative 1. So overall charge will be 0. So an atom has 0 charge, it's electrically neutral. If there are 10 protons and then there will be 10 electrons as well. तो उनका क्या चार्ज क्या हो जाएगा आंसर?
their sum will be equal to again 0. So जितने protons होते हैं उतने electrons, so that makes an atom electrically neutral. Next we come to atomic number, or which is also called proton number. Proton number से मतलब होता है the number of protons present in an atom. It is the number of protons which are present in an atom. और जितने protons होते हैं उतने ही electrons होते हैं. Next we have atomic mass number, or it's also called nucleon number. It is the mass of an atom, और सारा का सारा mass of an atom कहाँ concentrated है in the nucleus, इसीलिए इसको बोलते हैं nucleon number. इलेक्ट्रॉन्स का तो mass बहुत ही लाइट है, negligible है, they are very lighter particles. तो सारा का सारा mass किधर है, इस न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है. सो दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ बोथ protons, total number of protons and total number of neutrons makes the atomic mass or mass number. अब अगर हमें find out करना हो number of neutrons को, तो वो कैसे करेंगे? You will subtract, it will be, how will you calculate it? Atomic mass minus atomic number. ठीक है, like for example you have magnesium atom, और इसमें जो अब पहले ये पता होना चाहिए which one is the atomic mass and which one is atomic number. Atomic mass क्या है? It's a sum of protons and neutrons, so it will be a bigger number. So this is the atomic mass, and the smaller number will always be atomic number. हमेशा जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा? एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों आ जाते हैं, जबकि जो स्मॉलर नंबर है उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो वो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है. ऑलराइट, नाउ वी हैव मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम एटम जो होता है इसका जो 24 क्या है, इसका 24 is the atomic mass और 12 इसका atomic number है. Atomic number will give us the number of protons. So number of protons इसमें कितने हुए? 12. जितने protons होंगे उतने ही इसके अंदर electrons होंगे. और neutrons को हम कैसे करते हैं, कैसे find out कर सकते हैं? We can subtract 24 में से 12 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12. इसी तरह से मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम जब एटम आयन में चेंज होता है दैट मींस इट गेन्स अ चार्ज बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, क्या चार्ज आ रहा है? +2. पॉजिटिव 2 से मतलब ये है कि इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, number of protons will remain the same, number of neutrons will also remain the same, लेकिन सिर्फ क्या है, इसके अंदर 2 electrons lose हो रहे हैं, तो number of electrons will be now 10. In the case of oxygen, the atomic number is 8. atomic number 8 से मतलब ये है कि it has 8 protons and 8 electrons. So what will be the number of neutrons in it? It will be 16 minus 8. It will have 8 neutrons. अब जब ऑक्सीजन जो है वो आयन में चेंज होता है और इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? -2. -2 मीन्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, तो प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर तो सेम रहेगा, बट क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो इसके नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं हैविंग डिफरेंट proton number, sorry, having same proton number but different atomic number. और वो atomic number जब इनका proton number same है
तो जो एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के नंबर जो है वो वेरी करता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से हम आइसोटोप्स बनते हैं। न्यूट्रॉन्स के नंबर न्यूट्रॉन नंबर के कम ज्यादा हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम ऑन द होल न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं। इसका नंबर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, there are three isotopes of hydrogen. First one is called protium, second is called deuterium, third one is called tritium. These are the three isotopes of hydrogen. In the first one, in the first isotope of hydrogen, it has only one proton, और अगर one proton होगा तो उसके साथ one electron भी होगा. The second isotope has one proton because proton और electron number same रहता है, it cannot change. ठीक है, हमने पहले भी कहा है कि atoms of the same element which have same proton number but different mass number due to the different number of neutrons. तो इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी है, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक मास है वो हो जाता है 2. One proton plus one neutron. Atomic mass is the sum of protons and neutrons. Now 1 plus 1 it becomes 2. Tritium. Tritium में क्या होगा? Proton और neutron number will remain the same, जिसकी वजह से इसका atomic number will remain the same. Only the atomic mass will change. और वो कब क्या हो जाएगा? इसके अंदर क्या होंगे? 2 न्यूट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास जो है वो हो जाएगा 3, जबकि एटॉमिक नंबर इन ऑल द केसेस यू कैन सी द एटॉमिक नंबर रिमेन्स 1. दिस इज द एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर तीनों आइसोटोप्स में हमेशा सेम रहता है, सिर्फ जो है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. और वो एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो जाता है. और अब अगर हम इनके एटॉमिक मैसेज को देखें आइसोटोप्स के, तो आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है वो सिर्फ एक आइसोटोप का नहीं लिया जाता, क्योंकि आइसोटोप्स जो होते हैं कोई ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई कम अमाउंट में प्रेजेंट है. तो जब इनका एटॉमिक मास लिया जाएगा किसी एक का नहीं लिया जाएगा, बल्कि सारे के सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया जाता है. Like the atomic mass of an element is the average mass of all of its isotopes, taking into account their natural abundances as well. Like for example, chlorine जो है, chlorine के दो stable isotopes हैं. एक जिसमें पहला वाला आइसोटोप जो है क्लोरीन 35 का, उसकी अबंडेंस 75% है. दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37 जिसका एटॉमिक मास है, उसकी अबंडेंस है 25. अब पीरियोडिक टेबल में आपको तो सिर्फ एक क्लोरीन नजर आता है जिसका कि एटॉमिक मास कितना आ रहा है 35.5, एंड द एटॉमिक मास इज कमिंग इन फ्रैक्शन. तो ये फ्रैक्शन में आने की वजह यही है क्योंकि हम जब एटॉमिक मास लेंगे तो हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे, दोनों के एटॉमिक मासेस का हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स abundance, and then you will add it with the mass of the second isotope multiplied by its abundance divided by total abundance. Total abundance क्योंकि percentage है, it will be 100. तो आपके पास जब इसकी आप कैलकुलेट करोगे using this formula, it will be 35. Mass of the first atomic mass of the first isotope is 35 multiplied by its abundance which is 75 plus सेकेंड आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास है 37 मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस व्हिच इज 25. दिस ऑल डिवाइडेड बाय 100. जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर विल बी 35.5. So that shows the atomic mass of chlorine
which comes in fraction. जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके आपको एटॉमिक मैसेज अगर फ्रैक्शन में नजर आ रहे हैं तो ये क्लियर है कि दैट इज द atomic mass, average atomic mass of all of its isotopes. अब जो isotopes होते हैं of the same element, they will always have similar chemical properties but different physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम रहती हैं? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ स्पेशली वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कोई केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यही वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स या गेन होते हैं या लूज होते हैं, शेयर होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस. तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आइसोटोप्स में क्योंकि सेम रहते हैं, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी. बट क्योंकि उनके एटॉमिक मैसेस चेंज हो रहे हैं, जस्ट वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, सो दे मे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज स्टे द सेम. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स. अब हमारे पास डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट हैं कि जो फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस से, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट. उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सेकेंड शेल है उसमें 1 से लेके 8 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड. फिर थर्ड शेल के अंदर भी मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड और फोर्थ में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट. Now, if we write the electronic configuration of first 20 elements of the periodic table, इसमें आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1. मींस कि अगर ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर क्या होगा? देयर विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. हीलियम में द एटॉमिक नंबर इज 2. दैट मीन्स के यहाँ पे इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया. मीन्स जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये डुप्लेट जो है ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद से फिर थर्ड शेल स्टार्ट्स और उसकी फिर फिलिंग होती जाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल इन लिथियम द एटॉमिक नंबर इज 3, तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट शेल में चले गए. अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेक्स्ट शेल के अंदर जाएगा. इस तरह से ये न्यूक्लियस है, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है. ये अब इसमें कितने, फर्स्ट शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. और फर्स्ट शेल के अंदर थर्ड इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं हो सकता, सो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल गो इन द नेक्स्ट शेल. यहां से फिर आपकी सेकेंड शेल स्टार्ट हो जाती है. यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम में वी हैव द फर्स्ट शेल और लिथियम से लेकर नियॉन तक द सेकेंड शेल विल बी in the process of filling. Like beryllium, this is the first shell and then these elements will have second shell और उस सेकेंड शेल की फिलिंग होती जाएगी. वो किस तरह से? अब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 विल गो इन द इनर फर्स्ट शेल एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द आउटरमोस्ट शेल. जो आउटरमोस्ट शेल होती है that is also called the valence shell
और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, and these valence electrons participate in chemical reactions, not the inner electrons. बोरॉन 5, तो क्या होगा, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, आउटर में या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन मींस 2 इन इनर 4 इन आउटर शेल. नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 5. ऑक्सीजन की हो जाएगी 2 6, फ्लोरीन में 2 7 और नियॉन में जाके 2 8. यानी कि अब यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी कंप्लीट हो गई है, सेकेंड शेल की भी कंप्लीशन हो गई है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. इनर शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट में यानी कि जो हमारी सेकेंड शेल थी उसमें अब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं. सेकेंड शेल हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड. अब सेकेंड शेल के बाद हमारी क्या, जब ये 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो हमारी सेकेंड शेल कंप्लीट हो जाती है. अब जो 11th इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल नाउ गो इन द थर्ड शेल. तो इनर में हो गए 2, द फर्स्ट शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जब 11th इलेक्ट्रॉन आएगा इट विल गो इन द थर्ड शेल. यानी इस तरह से ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड हो गई, और जो थर्ड शेल है ये अब थर्ड शेल यहाँ से स्टार्ट हो रही है. इसके अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और अब जो नेक्स्ट ये 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए. अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है 11th इलेक्ट्रॉन, इट विल गो इन द थर्ड शेल. तो हमारे पास अब यहाँ से क्या हो रहा है, थर्ड शेल हैज स्टार्टेड. फिर मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम में हो जाएगा 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 एंड 8. दैट मीन्स के यहाँ पर आकर अब जो है थर्ड शेल भी कंप्लीट हो गई है विद ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट शेल के अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड के अंदर हो गए 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. तो अब जो 18th इलेक्ट्रॉन पे आकर थर्ड शेल भी कंप्लीट हो गई है. एटॉमिक नंबर 18 होता है, उस पर जैसे ही होता है ये थर्ड शेल कंप्लीट हो जाती है. अब जब 19th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा, नाउ दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव टू गो इन द नेक्स्ट शेल विच विल बी द फोर्थ शेल. 2 8 8 यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ शेल में जाएगा, और उसके बाद फिर कैल्शियम में भी ऐसे ही होगा 2 8 8 और 2. यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 और अब ये फोर्थ शेल शुरू हो गई है जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इन द केस ऑफ कैल्शियम देयर विल बी 2 valence electrons in its outermost shell. I hope all the topics are clear to you now. Okay, Allah Hafiz.